what happens today after the commotion, chaos and the protests we saw yesterday of the Delhi Chalo Farmers March? The Delhi Chalo March by the farmers will resume today as well. The Delhi entry points, that means, will stand blocked and barricaded. The Delhi cops are warning the agitating farmers, because this protest turned violent also yesterday, that they need not enter into the national capital. Tear gas was also used to deter some of the farmers. Multiple layers of barricading does not seem to be working. Farmers have refused to back down. It's a massive security build-up in the national capital, Delhi. Remember, for now, the farmers are not even being allowed entry into the Delhi border, but the chaos and the protests that you see, the use of tear gas shells, is actually more at Shambhu border, which is in Ambala, Haryana, because once if they breach this border, they will be able to head into Delhi. And then we have seen what happened in 2020-21 with the farmers' protest, where they literally decided to take a part of the border. They were there for about 18 months. Shreya Chatterjee is right there at the Shambhu border. Shreya, you are at the location where there has been maximum action yesterday. What does it look like today? What sort of deployment? And importantly, will they be able to, are they set? Are they planning to breach this border and reach Delhi? Well, Pooja, till yesterday at least at Shambhu border, the farmers who wanted to cross over to Haryana could not do the same. However, they removed the first layer of barricading, is what we do know from the reports that came in yesterday. I'll just give you a scene of the tractors that have lined up and are in position here at Shambhu border. They are waiting for the 9 a.m. time frame, because that is what the farmers suggested and said, that we will wait the night. And from 9 a.m. onwards, we will give another try. They've also sought other farm unions, meanwhile, to join them in large numbers so that they can cross over to the Haryana border. Now, I will give you a different picture of what you can see of what's happening in Haryana and when you compare to what is happening in Punjab. Now, here the Punjab government has clearly said that they will not give any pushback to the farmers, is why you see that Punjab police is over here present, checking vehicles and ensuring that no... I request you to please stay on with me, Shreya, showing us the deployment there at the Shambhu border. Joining me on the phone line is Sarwan Singh Pandey. He's the big farm leader who's been in talks with the administration as well. पंदेर जी, गुड मॉर्निंग. आज क्या प्लान है फार्मर्स का, क्योंकि कल जो हमने शंभू बॉर्डर पे देखा, टीयर गैस यूज हुई, पुलिस तो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी. देखिए, मैं किसान मजदूर मोर्चे का कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूँ. जी सर. एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की एक कॉल है. हमारा देखिए कोई प्लान नहीं है. तो हमें पूरा नेशनल मीडिया समझे, हमारा दिल्ली में जाना अनक का सवाल नहीं है. बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है. हमारा सवाल है देश के किसान मजदूर को, देश के किसान को एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून दिया जाए. C250+ का फार्मूला लागू करके हमको फसलों के दाम दिए जाए. किसान खेत मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए. लखीमपुर खीरी का इंसाफ हमें मिलना चाहिए. दिल्ली में डले सब केस वापस होने चाहिए. बिजली संशोधन बिल नहीं लाया जाना चाहिए. पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकाला जाना चाहिए. नरेगा 200 दिन चाहिए. ये फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे. और जब 60 साल का किसान खेत मजदूर होता 10,000 रुपया पेंशन दी जाए. तो इन मांगों पर हमें ये मांगे हमारी सरकार ध्यान दे, वार्ता करे. माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए और हमसे बैठ के निपटारा करें. पंदेर जी, ये तो काफी लंबी लिस्ट है जो आपकी डिमांड्स की. मेन तो एमएसपी पे थी, जिसपे अभी सरकार ने कहा है कि बाकी डिमांड्स फिर भी फुलफिल हो जाएंगी. ये जो एमएसपी का डिमांड है, एकदम तो कानून बन नहीं सकता, डिस्कशंस होंगी, ड्राफ्ट बनेगा, तो वो आप मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? देखिए केंद्र सरकार गलत बयानबाजी करे, तथ्य नहीं दे रही. हमने कहा 23 फसलों के ऊपर सरकार एमएसपी का अनाउंस करती है. CACP की जो है वो पूरा डेटा कलेक्ट करके पूरे देश के सब आंकड़े लेकर उसका अनाउंस करती है. हमने बोला 23 फसलों का आप रेट तो तय करते ही हैं. तो हमारी तनिक सी मांग मान लीजिए, इसको कानून लीगल गारंटी दे दीजिए कि आपकी मंडी में फसल इस रेट से नीचे नहीं बिकेगी. इतनी सी बात है. बिल्कुल उसको कमेटी के में डालकर लंबे बस्ते ठंडे बस्ते में डालना ये उचित नहीं होगा.
सरकार की आपसे फिर बात हुई? अभी जब अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल आए थे तब ऐसा लगा कि बात पूरी नहीं हुई, उससे पहले भी आए थे चंडीगढ़ में। क्या पिछले कुछ घंटों में आपसे कुछ बात हो पाई है सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से? क्या आप अभी तैयार हैं अगर सरकार से बात करनी है? देखिए, हमने वार्ता के लिए हमेशा दरवाजे खोल के रखे हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा हम वार्ता नहीं करेंगे जी। दूसरा है कि जो माहौल है अभी, जिस तरह से हम हमारे ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल, रबड़ की बड़ी बड़ी गोलियां, तस्वीरें भेजूंगा मैं आपको, इस तरह 315 के फायर भी इस्तेमाल किए गए। इस माहौल में क्या वार्ता होनी चाहिए? आप माहौल को शांत करिए, पीसफुली करिए, वार्ता करने के लिए तैयार है। आप जिस तरह से इंटरनेट बंद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे ट्विटर हैंडल बंद कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे हरियाणा को आपने एकदम खुली जेल में बदला हुआ, ये लोकतांत्रिक देश है। भाई अलग बात है आप हमारी मांग उचित ना लगे, आपको कुछ भी ना माने, हमें कम से कम, हम आपके देश के किसान हैं, हम खेत मजदूर, हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो दीजिए कम से कम। तो फिर आज क्या प्लान रहेगा? बॉर्डर्स तो सील हैं, कल हमने देखा अंबाला में क्या हुआ, तो क्या आज फिर कूच करेंगे दिल्ली की तरफ? कैसे करेंगे फिर, कैसे बढ़ेंगे आगे? और देखते हैं, हम तो चाहेंगे कि केंद्र सरकार या तो कोई निर्णय ले या हमें आंदोलन करने का अधिकार दे। ये एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो इतनी डिमांड है मेन एमएसपी की है, काफी डिमांड्स भी है सरकार का, ये भी मानना है कि जो 2020 और 21 में इतने महीने बैठे रहे दिल्ली में, रेड फोर्ट पर भी जो अटैक हुआ था, तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है इस धरने से, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ आए, देखे, सरकार हमसे बात कर ले, सरकार के अधिकारी बात कर ले, कुछ भी उनको आशंका लगती है, हम देश के किसान मजदूर, हमारे से देश बनता है, ये देश हमारा है, ऐसे हमारे बारे में सोचना ठीक नहीं है। हम उसको बता देंगे क्या समस्या है, कैसे बैठना है, कहाँ बैठेंगे, सब कुछ हो सकता है। जब बातचीत ही नहीं करेंगे, अधिकारी कहेंगे जो हम आपको आपके ऊपर बल प्रयोग करेंगे, सरकार कहेगी, तो ये उचित तो नहीं है ना। पंदेर जी, वहां से टीयर गैस हो रहा है, वो हमने भी विजुअल्स देखे, हमारे भी कुछ साथी को इंजरी आई, लेकिन जो आपकी तरफ से भी जिस तरह से पथराव हो रहा है, अटैक हो रहा है, बैरिकेड्स पुश हो रहे हैं, तो ये भी क्या आपको नहीं लगता इमेज अगेंस्ट जा रही है एक फार्मर धरने को लेकर कि ये कैसे किसान है जो इस तरह से पथराव कर रहे हैं और पुलिस वालों को अटैक कर रहे हैं? देखिए, उधर भी जो अर्धसैनिक फोर्स है, पुलिस नहीं अर्धसैनिक फोर्स है, वो हमारे घरों से, ये लगभग 111 कंपनियां लगाई इन्होंने अर्धसैनिक फोर्स की, सीआरपीएफ है, तो वो हमारे परिवार है, हमारे घरों से। बिल्कुल दोनों तरफ, इधर किसान है, उधर जवान है, ये हमारा देश है। हम क्यों करेंगे ऐसा? कुछ एक आध छुटपुट घटना हो उसको हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारी ओर से कभी भी हाथ नहीं उठेगा, ना हम ऐसा कुछ करने का मन बना के लाए। सरवान सिंह पंदेर जी, काफी आपने ठीक बात भी कही, और ये उम्मीद है कि इसी तरह से बातचीत ज्यादा जरूरी है। आप सब किसान हैं, सिटीजन हैं इस देश के, डिमांड्स पूरी, आपका प्रोटेस्ट का हक है, लेकिन वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हो, ना पुलिस कर्मी घायल हो, ना किसान घायल हो, बातचीत बनी रहे, उस पर हम ट्रैक करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।